So, good morning to all of you. Once again, we are going to start chapter number 8 of term 1. टर्म 1 का जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड kinesiology in sports. So here we are going to know the definition of anatomy, physiology, kinesiology, importance of anatomy, physiology, kinesiology, and many things. So okay, then we are going to start. Let's start. So first of all, we should know कि what is the anatomy. What do you understand by anatomy? Actually, anatomy is the study of human structure. Anatomy is the study of human structure, like shape, size, height, different type of organs and their location in the body. So we can say here anatomy is the study of an organism structure. Anatomy tell us the basic structure of various body part and their internal relationship. If we are going to know where is our heart, where is our lungs, where is our kidney, and different body parts, different organism of in our body, and what is the structure of our body, ठीक है, bone and location, it's all thing, then it is known as the anatomy. So we can say कि it is a science dealing with the body structure and relationship among structure. This is the anatomy. And what is the physiology? Actually, the word physiology, in physiology we study how different parts or organs of an organism working together to achieve a particular function. Listen carefully. Actually, in anatomy we study the structure, shape, size, weight, location of all organs of human body. But in physiology we study how different parts or organ work together to achieve a particular function. Okay, so physiology is the study of how human body function, how human body working. ठीक है, तो physiology is the science dealing with the study of human body function. Now it is clear what is the anatomy, what is the physiology, it is clear. It is a interlinked subject. Okay, तो ये interlink है, ये without knowledge of perfect anatomy you will not go physiology. ठीक है, आप फिजियोलॉजी में नहीं जा सकते अगर आपके पास एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है अच्छी, तो आप फिजियोलॉजी में नहीं जा पाओगे. ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इंटरलिंक्ड हैं. अगर हमको फिजियोलॉजी में जाना है, फिजियोलॉजी का अध्ययन करना है, फिजियोलॉजी के बारे में जानना है, तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द एनाटॉमी परफेक्टली. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज kinesiology. What is the kinesiology? Kinesiology means the study of motion. Okay, kinesiology is the branch of physiology that study mechanics and anatomy in relation to human body movement. Listen my dear friend, actually anatomy and physiology, जैसे anatomy और physiology एक दूसरे से linked हैं, एक दूसरे का अध्ययन करने के बगैर एक दूसरे अधूरे हैं. सपोज दैट कि फिजियोलॉजी अगर आप जानना चाहते हो तो यू शुड नो फर्स्ट एनाटॉमी. वैसे ही कैनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं. ठीक है, इंटरलिंक्ड हैं.
अगर आप अच्छे से किनेसियोलॉजी को जानोगे तब आप अच्छे से बायोमैकेनिक्स को जानोगे। बट आपको यहाँ पे इस बार का जो सिलेबस है नया, वो बायोमैकेनिक्स पढ़ना नहीं है आपको, बट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप किनेसियोलॉजी को अच्छे से जानोगे तभी बायोमैकेनिक्स को जानोगे, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, किस फिजिकल लॉ के अंतर्गत यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर वर्किंग, ठीक है, योर बॉडी इज गोइंग, रनिंग, जंपिंग, ठीक है, आपकी बॉडी जा रही है, आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, आपकी बॉडी रनिंग कर रही है, आपकी बॉडी जंपिंग कर रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लॉ अप्लाई हो रहे हैं उस पर फिजिक्स के, दैट इज नोन एज द बायोमैकेनिक्स। मैकेनिकल लॉ जो अप्लाई होते हैं वो बायोमैकेनिक्स में है। तो वो कैसे आप जानोगे? फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द किनेसियोलॉजी। सो किनेसियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द interrelationship of physiological process and anatomy of human body with respect to movement. Means kinesiology is the science dealing with the interrelationship of physiological process and anatomy of the human body with respect to movement. Means कि movement के respect में physiological process है, यह एक साइंस है जो कि इंटरलिंक कहाँ से है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और एनाटॉमिकल जो है एरिया से, किसके रिस्पेक्ट में, एक मूवमेंट के रिस्पेक्ट में। बिकॉज कि जो मूवमेंट होता है, जो कोई भी मूवमेंट आप करोगे, कोई भी बॉडी मूवमेंट अगर आप करते हो तो वो आपकी बॉडी करेगी, उसमें कौन से बॉडी स्ट्रक्चर हैं, कौन सा बोन है, कौन सा मसल है, क्या मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आप एनाटॉमी में जानते हो। मसल एंड शेप एंड साइड एवरीथिंग यू विल लर्न इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल कि हाउ दे आर वर्किंग, फिजियोलॉजी, ठीक है, और कौन सा मैकेनिकल लॉ अप्लाई हो रहा है, किस लॉ के अंतर्गत दे आर वर्किंग, इट यू विल नो इन बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड द नॉलेज of structure of the various organ and function of various organ. First एनाटॉमी में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस ऑर्गन, उस वेरियस ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। और इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम लोग क्या जानते हैं, हाउ दे आर वर्किंग, कैसे वो वर्क कर रहा है, वो ऑर्गन कैसे वर्क कर रहा है, ये हम जानते हैं। यूजफुल इन प्रिवेंशन फ्रॉम द इंजरी, यस वेरी नाइस, कि अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अच्छा नॉलेज है देन यू विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ द इंजरी इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है, जो पुनर्वास होता है, उसके प्रोसेस में यू कैन सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, कि आप उस प्रोसेस में अच्छा लाभ उठा सकते हो इफ़ यू नो वेरी वेल अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कैसे भाई, अगर आप जानते हो कि आपकी कौन सी बोन है, कौन सा बोन कैसा वर्क कर रहा है, और उस बोन पे बोन या फिर उस मसल की रिहेबिलिटेशन आप कर रहे हो, उस मसल पे कोई इंजरी है, आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, तो आप वहाँ के उस प्रोसेस में लाभकारी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में भी सर्व करता है, ये बहुत हेल्पफुल है। यूज इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, यस वेरी नाइस, सिलेक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स में कैसे यूज होता है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, बॉडी, वेट, एवरीथिंग। तो अगर हम किसी बच्चे का एनाटॉमिकल जो है अध्ययन करें, तो उसका शेप, बॉडी साइज, बॉडी टाइप, ठीक है, वेट, सब कुछ हम जानने के बाद एक
हाइपोथेसिस करेंगे, एक कल्पना करेंगे, या फिर एक सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि नो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म स्पोर्ट्स देन यू कैन गो इन दिस स्पोर्ट या फिर इन दिस स्पोर्ट। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा छोटा है, मस्कुलर है एंड ही हैव अ गुड स्ट्रेंथ, देन वी विल एडवाइज दैट गो इन द फील्ड ऑफ वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। सिलेक्शन इन स्पोर्ट्स, फैसिलिटेट इन प्रिपरेशन फैसिलिटेट इन प्रिपरेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रिपरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्प टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो केमिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, उसके बारे में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, मैं कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। मायोग्लोबिन कंटेंट्स इंक्रीज। मायोग्लोबिन जो है उसका कंटेंट जो है इंक्रीज होता है। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग कंपाउंड फाउंड इन मसल टिश्यू विच एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्टोर एंड हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इंक्रीज। तो इस टाइप के जितने भी जो हमारे बायोकेमिकल जो है चेंजेस हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, उसमें ये भी ये हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सर्व टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द मेल एंड फीमेल। तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल के बीच में होते हैं, उसको समझने में भी बहुत अच्छा योगदान प्रदान करता है। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स। या फर्स्ट एड जो होता है उसमें भी बहुत अच्छा योगदान प्रदान करता है, क्योंकि अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज है तो आप फर्स्ट एड दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एड का जो उपचार होता है वो आपको बहुत ही ईजिली दे सकते हो और बहुत ही अच्छे से। यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यस, फिजिकल फिटनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी सपोज दैट कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट, देन आपको अगर पता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल स्टडी है आपका बच्चे के ऊपर, आप बच्चे के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट डिफाइन करोगे, नहीं ये इतना ज़्यादा नहीं दौड़ सकता, या फिर ये इस टेस्ट को अच्छे से ईजिली नहीं अटेंड कर सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजिंग इन अ टेस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यूज़फुल इन स्पोर्ट्स मसाज। स्पोर्ट्स मसाज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन द स्पोर्ट्स। इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है स्पोर्ट्स पे, ये भी जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें सहायक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लिखा हुआ हूँ मैं कि नंबर ऑफ RBC इंक्रीज ड्यूरिंग द अंडरगोइंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होती है, तो हाई एल्टीट्यूड जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। अनएरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी जितने भी हैं वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत अच्छा उनमें हेल्प मिलता है। तो उस दौरान क्या होता है, RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल, वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो इंक्रीज होता है हाई एल्टीट्यूड पे, ये आप लोग ध्यान देना। इम्पोर्टेंस ऑफ किन्सोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंट ऑफ किन्सोलॉजी क्या है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, ये देखते हैं किन्सोलॉजी का। किन्सोलॉजी फोकस ऑन दी मैकेनिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन मूवमेंट विच इज बेनिफिशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल इवन इन देयर डेली एक्टिविटी। यस, वेरी नाइस। किन्सोलॉजी क्या है? किन्सोलॉजी द स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन या मूवमेंट का जो भी स्टडी है, ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
not only in the field of physical education and sports but also in the field of daily life या फिर डेली रूटीन, ठीक है, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होता है. इट इज़ हेल्पफुल इन द promotion of the health because kinesiologists are also engaged in providing fitness facilities, personal training, cooperative wellness facilities. तो जो किन्सियोलॉजी है वो कहाँ से प्रमोट करता है, वो कहीं ना कहीं से हेल्थ को प्रमोट करता है. जो कि किन्सियोलॉजिस्ट लोग होते हैं, जो किन्सियोलॉजी के विद्वान लोग होते हैं, वो हमेशा इंगेज रहते हैं प्रोवाइडिंग दी फिटनेस फैसिलिटीज़, पर्सनल ट्रेनिंग और वेलनेस, कोऑपरेटिव वेलनेस फैसिलिटीज़, इन सब को प्रोवाइड करने में अपना योगदान देते हैं थ्रू दी किन्सियोलॉजिकल स्टडी. ठीक है, किन्सियोलॉजिकल स्टडी के बाद. और आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट. तो डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट का जो इम्पोर्टेंस ये सब होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ का डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट के डेवलपमेंट, हेलमेट का इक्विपमेंट, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट, तमाम टाइप से जो भी ये सब चीज़ें हैं. सरफेस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के टर्फ के, नॉर्मल सरफेस जो होते हैं, ये सब के जो डेवलपमेंट हुए हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोमैकेनिक्स. ठीक है, these are the related with directly biomechanics. बायोमैकेनिक्स के अध्ययन से या इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स में आप ये सब लिख सकते हो. यहाँ पे नहीं लिख सकते. यहाँ पे किन्सियोलॉजी में तो हम मूवमेंट का अध्ययन करते हैं ना. वी विल नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट इन बायोमैकेनिक्स वी विल नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट एंड बिटवीन द मैकेनिकल लॉ. कौन सा मैकेनिकल लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा मूवमेंट करते वक्त क्या मैकेनिकल लॉ अप्लाई हो रहा है, ये हम अध्ययन करते हैं. तो वहाँ पे हम लोग डालेंगे. किन्सियोलॉजी प्रोवाइड नॉलेज टू एथलेटिक ट्रेनर हु स्ट्राइव टू प्रिविलेंस द एवरीथिंग. ओके. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल विद डिसएबिलिटी एज it assists them to learn about their optimum physical function. तो किन्सियोलॉजी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी. इफ यू आर सफरिंग विद द डिसेबिलिटी, या फिर जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं, दिव्यांग जो हैं थोड़ा, उनको असिस्ट करने के लिए किन्सियोलॉजी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होता है. ठीक है, बिकॉज कि हम यहाँ पे मूवमेंट का अध्ययन करते हैं. ठीक है. इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय लर्निंग हाउ टू एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड टू डिस्कवर देयर अंडरलेइंग प्रिंसिपल. ठीक है. यस, इट इज़ रियली यूजफुल इन इम्प्रूविंग दी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में किन्सियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है. सपोज दैट कि अगर हम लोग जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, फॉर नॉर्मल एग्जांपल, कि सपोज दैट इफ़ आई एम वॉकिंग और आई एम रनिंग, या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट स्विंगिंग माई हैंड. ओके, ड्यूरिंग दी रनिंग, जो रनिंग के वक्त में हम लोग हाथ को अपने स्विंग करते हैं आगे पीछे. ठीक है, नॉर्मल ये चीज़ है, ये बाय नेचुरल चीज़ें हैं कि आप रनिंग करते हो तो आपका हैंड स्विंगिंग करने लगता है. ठीक है. सपोज दैट उस हाथ को कभी आप रोक के, ठीक है, स्टेबल कर लो कि हाथ को नहीं हिलाना है, हाथ जहाँ पे है सिर्फ वहीं पे ऐसे स्टेब्लिश रहेगा और हम दौड़ेंगे, तो आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा. ठीक है. यू विल अप्लाई मोर एनर्जी इन कंपेरिजन टू जो स्विंगिंग हैंड वाला है. जब स्विंगिंग हैंड करोगे, साथ में दौड़ते वक्त हाथ आगे पीछे करते रहोगे, तो अप्लाई क्या होगा,
लेस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लेस अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप हैंड को एस्टेब्लिश कर लेते हो तो एनर्जी ज़्यादा अप्लाई होगा। तो ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को क्या क्या टेक्निक है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू विच वी विल एक्सपेंड लेस एनर्जी एंड वी विल गेट मोर इफेक्ट। ठीक है, लेस एनर्जी को एक्सपेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इफेक्ट को प्राप्त करना, ये होता है फ़ायदा। फ़ायदा तो यही होता है ना कि कितना कम पैसे में कितना ज़्यादा आप कर रहे हो, कितना कम जो है वर्क में कितना ज़्यादा आप प्रॉफिट पा रहे हो, तो कितना कम एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो और कितना ज़्यादा आप बेनिफिट पा रहे हो, दैट इज़ द इम्प्रूवमेंट इन ए स्पोर्ट्स। यही होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो किन्सियोलॉजी के थ्रू हम इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने स्पोर्ट परफॉर्मेंस में। इट्स प्रोवाइड knowledge to understand the relationship between human structure and function. Yes, it provide knowledge between the human structure and function. Structure, the structural study of human body is known as the anatomy. Functional study of human body is known as physiology. तो मूवमेंट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मूवमेंट है। अगर स्ट्रक्चरल स्टडी मैंने कर लिया, ठीक है, सपोज दैट मैंने कर लिया कि हाँ पैर का है, फीमर हड्डी है, क्वाड्रिसेप मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, गैस्ट्रोसिनेमियस है, सोलेस मसल, देयर इज सो मेनी मसल्स। ठीक है, जो मेजर मसल है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो ये मैं जान गया। ठीक है, हाउ दे आर वर्किंग ये भी मैं जान गया। लेकिन जब तक मैं मूवमेंट नहीं करूँगा तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या रिलेशनशिप है, कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप को जानने के लिए। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर मेकिंग सेफ मूवमेंट ड्यूरिंग द गेम एंड स्पोर्ट्स। यस, इफ यू नो द kinesiology, if you know very well about the kinesiology, then it is very helpful during the sports or during the movement, during the playing। ठीक है, आप खेलते समय, दौड़ते समय, किसी भी मूवमेंट को करते समय बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जानते हो आपको मूवमेंट कैसे करना है। अगर मूवमेंट अच्छा होगा देन द चांसेस ऑफ एनर्जी the chances of injury will be less। ओके, तो मूवमेंट अच्छे होने पे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी जो है बहुत कम हो जाता है। एक्सपेंड आप बहुत कम करते हो एनर्जी को और बेनिफिट ज़्यादा पाते हो। इट इज़ हेल्प टू इवेल्युएट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को इवेल्युएट करने में बहुत ही यूजफुल है। किन्सियोलॉजी इज़ बेनिफिशियल टू यूज मूवमेंट फॉर द थेरेपी, थेरेपी वाले मूवमेंट को भी यूज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये थेरेपी वाले मूवमेंट को। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ skeleton system, classification of bone and types of joint. This is the very important chapter. This is the very important chapter and this is the most important topic of this chapter. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? एवरीवन नो कि स्केलेटन सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी। द हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन मेक द स्केलेटन सिस्टम टू एक्ट एज अ फ्रेमवर्क which support the body and give it shape। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बोन। ठीक है, जो भी बोन है हमारे बॉडी की, जो ढांचा है जिसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब में हमेशा रहता है, जिस भी स्कूल में
आप लोग जाओगे तो अभी बायोलॉजी लैब में जाओगे तो स्केलेटन सिस्टम यू कैन सी वेरी इजली. This system is a combination of various type of bones. There are 213 bone in a children and 206 bone in adult. Basically adult में 206 बोन होते हैं, 213 बोन चाइल्ड में होते हैं. कुछ बोन जो है आपस में जुड़ जाते हैं बड़े होते समय, तो बोन कम हो जाते हैं. These bone differ in a shapes and size. ठीक है, शेप और साइज में भी बोन जो है डिफरेंट होते हैं. These bone are joined together by ligament. लिगामेंट से ये जो एक दूसरे आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है, बोन. तो स्केलेटन सिस्टम एंड द स्केलेटन सिस्टम या फिर स्केलेटन कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट. ये हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्केलेटन सिस्टम को. अपर स्केलेटन या फिर यू कैन से एक्सियल स्केलेटन या फिर अपर पार्ट जिसे हम बोलते हैं. सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन या फिर जिसे हम बोलते हैं लोअर पार्ट या फिर लोअर पार्ट विथ अपर एक्सट्रीमिटीज, माने अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज इसमें होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन में देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हैं. एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले भाग जो आता है वो आता है स्कल, जो हमारा सिर है. स्कल में हम देखते हैं कि क्रेनियम है, फेस है एंड ईयर है. कान भी है, क्रेनियम भी है और जो है फेस भी है. तो स्केलेटन सिस्टम वी आर गोइंग टू